Hello students. Today we will discuss about the second last chapter of this development planning paper. Here it is the name of chapter which we will be studying here. That is the environment and sustainable development. So let's start uh, with the subject, with the points which we will cover in this chapter. First, we will see the meaning of environment. Second, we will discuss about the causes and effects of environmental degradation and resource depletion. And third and very important thing which we'll discuss, that is the relationship between environmental issues and sustainable development. Rather, you can say we will check the relationship between environment and development. This is the bigger concern for us today. So, first we will start with the meaning of environment. What is the meaning of environment and why we are studying this chapter here in class 11th? Being a student of economics, you should try to understood. Here in introductory part, I included the cause, the reason behind this chapter, why we are studying, why this chapter uh, come under the current challenges of Indian economy. So the economic development that we achieved so far has come at a very heavy price, at the cost of environmental quantity and quality. As we are living in the era of globalization that promises higher economic growth, we have to pay a heavy price for this in terms of adverse consequences on our environment. We are developing ourselves, no doubt about it, but simultaneously we are damaging our valuable environment. Without that, we can't survive on earth. So students, it's a very big concern for us. Now just try to understood the meaning which I hope you all have already known about this fact and this environment term, what directly it included. But just as a reminder, just I would like to provide some facts, something which you might got already. First of all, this flower from my side to all nature lover persons. And environment can be defined as the total planetary inheritance and the totality of all resources. All resources, everything involved in this environment term, nothing remains. So, students, clear in your mind that all things, all available things here and there surrounding us will come under the environment. But for the sake of easierness, we can categorize the environment in two parts. It includes all the biotic and abiotic factors. Biotic and abiotic factors that influence each other. Now, what is biotic factors? What is biotic factors? Biotic factors means all living elements. For example, birds, animals, plants, forests, fisheries, etc. Many things which you can see the see categorized under the living things, things which are growing themselves,
which are respiratory, which have respiratory system and some mechanism of living elements. You can see all such things you have to categorized in the category of biotic elements and non-biotic elements or abiotic elements. For example, air, water, soil, river, well, many things you can categorize, but all are the part of environment. Now, students, we will discuss about the functions of environment. What environment do in our system. Just try to see. Number one thing, very important thing, that it supplies the resources. It supplies the resources. We have categorized already in renewable and non-renewable resources, so we'll discuss about it also. It assimilates waste, no doubt about it. Whatever waste we are creating, human being or any living non-living things, whatever waste, ultimately it assimilates by our environment. कूड़ा कचरा whatever, सब कुछ प्रकृति में, सब कुछ पर्यावरण में जाके घुल जाता है. अब ये रिजल्ट क्या देता है, इफेक्ट क्या होता है, विल डिस्कस लेटर. बट जो भी आपके यहाँ कूड़ा कचरा होता है वो कहाँ जाता है, पर्यावरण में ही जाता है. तो इट आल्सो असिमिलेट्स द वेस्ट. It provides the valuable resources which we have categorized in renewable resources and non-renewable resources. But students, one thing you should clear in your mind, the resources are limited. That's why we are studying here the economics. If resources are unlimited, there is no need to study any subject. कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने, रिसोर्सेज ही लिमिटेड हैं, उनको कैसे यूटिलाइज करेंगे, हाउ वी शुड यूटिलाइज it in right manner, rational manner, efficient manner. That is the problem, that is the question which we are trying to solve under the economics. All policies, all models, all schemes are running to um, to get the efficient path. Okay. Now, number three is the it sustains life by providing genetic and biodiversity. This term biodiversity, already you all are aware about it. Biodiversity something you can say that it shows the dependency of each other, all living and non-living things in environment. Biodiversity will run with the help of environment only. पर्यावरण नहीं होगा तो पारिस्थितिकी या बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. तो आप ये भी जानिए कि हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, हम जिंदा हैं तो हमारी डिपेंडेंसी कई चीज़ों पे है, हमारी डिपेंडेंसी जिन चीज़ों पे है उनकी डिपेंडेंसी कई चीज़ों पे है. तो कुल मिला के एक साइकिल बन जाता है. दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी एंड इट सस्टेन्स आवर लाइफ. दैट्स वाई वी आर हियर लिविंग. Okay. So three major functions environment performs. Now, fourth function, it also provides aesthetic services like scenery, etc. Aesthetic, something which you are not going to calculate in monetary form, just for enjoyment, just for pleasant environment. Just you want to give your eyes something different, something refreshing. It also come from the environment, so it's a very important thing. In earlier slide I have shown a flower which was quite moving here and there, and I presented to you all that also the part of environment, that is the beauty of environment. So this is the importance, these are the functions which environment perform.
Now just try to understood which you already got the meaning renewable resources and नॉन renewable resources. renewable का मतलब होता है जिसे हम बार बार यूज कर पाते हैं, उसका रीयूज पॉसिबल होता है. नॉन रिन्यूएबल में एक ही बार ज़्यादा यूज किया या कम यूज किया, एक बार यूज किया वो ख़त्म हो जाता है. तो दैट कम अंडर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. रिन्यूएबल मीन्स नवीनीकृत, बार बार उसको रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं. बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को आप नहीं कर सकते हैं. ओके. Now, just students, one more thing you should clear in your mind, that I'm limiting myself when I'm teaching this environment and development. I'm limiting myself with the syllabus which CBSE provided to you all. सो बहुत सारी चीज़ें हैं पर्यावरण में डिस्कस करने के लिए, बट वी कांट डिस्कस हियर थॉरोली. हाँ, क्योंकि ये पर्टिकुलर क्लास और पर्टिकुलर क्लास के बच्चों के लिए मैं बना रहा हूँ वीडियो. तो कभी बिगर सेंस में बनाएंगे तो बहुत ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव में डिस्कस करेंगे. बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, महीनों सालों डिस्कशन, बहुत सारी रिसर्चेज हुए हैं. इन्वायरमेंट तो बड़ा कंसर्न है इंटरनेशनल लेवल पे. Something we'll talk about the things which are happening at international level. Now, state of India's environment. भारत में पर्यावरण की क्या स्थिति है? इंडिया हैज़ अबेंडेंट नेचुरल रिसोर्स. अबेंडेंट बहुत ज़्यादा है, पर्याप्त से भी ज़्यादा. नो मैटर, ये तो बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई समस्या ही नहीं है. हम सभी जानते हैं रिसोर्सेज की तो खान है भारत. India has abundant natural resources in terms of rich quality of soil, hundreds of rivers and tributaries, lush green forests, plenty of mineral deposits beneath the land surface. No doubt about it. I'm not going to read all these things. Just try to understood we have all things, near about all things. But one thing you should remember, student, all things are in finite manner. Wherever you discuss about the environment, try to understood that the resources are limited. We have started economics with introduction why we are studying economics, and I told you that why we are studying, because we have limited resources and unlimited wants. Just try to make balance in our subject. We are trying to make balance between unlimited wants of human being and limited resources. That is the problem. Here also all resources we have, but in finite sense. It's not in infinite sense. That's the matter of concern. Okay. And how you can see in wait. Huh. Threat to environment from deforestation and degradation of environment due to many causes. Here mentioned poverty, unemployment, many more causes also added in this. You can add in this, but the threat, the threat to environment is deforestation and degradation of environment. हाँ, अब डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, डिग्रेडेशन क्या होता है, आई होप यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट. डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगल को काटना. डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है लगाना, और डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है काटना. क्यों काट रहे हैं, कटाई हो रही है, ये तो फैक्ट है, ये तो देख ही रहे हैं हम लोग. डिग्रेडेशन हो रहा है, कुछ हरण हो रहा है, कुछ कीमती बहुमूल्य चीज़ें प्रकृति की हमारे हाथ से निकलती जा रही हैं, तो उसको डिग्रेडेशन बोलते हैं. वो लैंड भी हो सकता है, एनवायरनमेंट का कोई भी पार्ट हो सकता है. नाउ सेकेंड इज द थ्रेट फ्रॉम पॉल्यूशन लाइक एयर पॉल्यूशन. इट्स बिग कंसर्न नाउ डेज स्टूडेंट्स. यू कैन सी इन दिल्ली एंड नियर by areas of Delhi and in all over world, the problem of air pollution, water pollution, soil erosion, and many more problems
related to environment you can see. Okay, so these are the big concern and big concern for our economy too. ये दुनिया के लिए पर्यावरण किसी एक का तो है नहीं, एक देश का है नहीं, एक राज्य का है नहीं, आपका है नहीं, हमारा है, ये सबका है। अब थोड़े ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में बात करेंगे तो समझ लीजिए जो सबका है वो किसी का नहीं है। ये दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। इसको भी हम लोग एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं, लेकिन आपका सिलेबस नहीं है तो हम बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे। बट एक बड़ी आश्चर्यजनक बात आप देखते हैं, कभी कभी आप कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जो किसी का नहीं है वो सबका है। जैसे जैसे पार्क, पार्क में आप खड़े हो जाइए, वहाँ के लिए पौधों को कुछ लोग तोड़ रहे हैं, पत्तियों को तोड़ रहे हैं। किसी के घर का होता तो बोल देता, क्योंकि प्रॉपर्टी राइट है वहाँ। ये थोड़ा सा हायर क्लास की बातें हैं, लेकिन आप समझिए कॉमन सेंस की भी बातें हैं ये। तो जो सबका है वो कोई नहीं बोलेगा, फिर कहेगा भाई ये तो सबका है, कॉमन। दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। ओके, तो फॉर इन्वायरमेंट आल्सो, कौन कंट्रोल करेगा पोल्यूशन को, कौन डिफॉरेस्टेशन रोकेगा? डिफॉरेस्टेशन, किसी को घर बनाना है, पेड़ काटेगा, वो कहेगा हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है, ऐसा थोड़ी है बारिश कम हमारे ही घर पे होगी, ऐसा थोड़ी है कि ग्लोबल वार्मिंग होगा तो हमारे घर को ही इफेक्ट करेगा, ऐसा थोड़ी है कि हम ही पेड़ काट रहे हैं, पूरा देश काट, पूरी दुनिया काट रही, पूरा समाज काट रहा है। तो दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनवायरमेंट। ओके, नाउ ये समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई डिफॉरेस्टेशन की या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की, तो जो बहुत सारे देखिए जो आंदोलन हुए, जो विरोध हुआ, जो प्रोटेस्ट हुआ, वो वहाँ पे हो रहा है जहाँ पे लोग बाग ज़्यादा प्रकृति पर निर्भर हैं, जो प्रकृति के ज़्यादा नज़दीक हैं। द फर्स्ट मूवमेंट इन इंडिया taken place in 1973, that was called the Chipko movement, Chipko Andolan. It is mentioned here, you can see चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन उत्तराखंड में शुरू होता है। उत्तराखंड में आपको पता है पेड़ पौधे, हिल एरियाज, बहुत पहाड़ियां हैं, पेड़ पौधे ही हैं ज़्यादातर, और वहाँ के लोगों की निर्भरता भी उन पे है। वो प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं, क्योंकि प्रकृति ही सब कुछ देती है उनको, वहीं जीना है वहीं मरना है, तो प्रकृति को सब कुछ मानते हैं। तो जब डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काट काट के रोड बनाना, पेड़ों को काट काट के घर बनाना, पिकनिक स्पॉट क्रिएट करना, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, वट एवर दे आर डूइंग फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट। अब देखिए डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट में बड़ा बड़ा विरोध का रिलेशन है, एडवर्स रिलेशन है, ये एक साथ का रिलेशन नहीं है। दिस इज़ द प्रॉब्लम। ये आंदोलन शुरू हुआ, कुछ कुछ महिलाएं वहाँ पे 30 के आसपास महिलाएं जो वहाँ की लोकल थी, वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन करने लोग गए तो चिपक गए। चिपको आंदोलन का नाम है क्योंकि दे हग्ड द ट्रीज, उन्होंने गले लगा लिया पौधों को, बोला कि नहीं, आप अगर पौधों को काटना चाहते हैं तो पहले मेरे गले को काटिए। दैट वॉज द वे ऑफ प्रोटेस्ट फॉर द लोकल पर्सनल्स, वहाँ के लोकल लोग, खास करके महिलाएं। एक एक फिर इसको एक बढ़िया रूप दिया। एक व्यक्ति हुए थे, गांधीवादी कार्यकर्ता थे, ही वॉज गांधीयन एक्टिविस्ट। द नेम इज़ वेरी फेमस, यू शुड रिमेंबर फॉर योर हायर क्लासेस एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सुंदर लाल बहुगुणा जी, अब देखिए ये मैंने अलग कलर से दिखाया, सुंदर लाल बहुगुणा। ये व्यक्ति हुए जो इस मूवमेंट को एक राइट पाथ पे, एक एक अच्छे तरीके से उन्होंने इसको आगे बढ़ाया, और उन्होंने स्लोगन दिया, इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी। उन्होंने कहा भाई देखिए द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट, उन्होंने एक लाइन में, और ये लाइन बड़ी फेमस होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड बाद में चल के, इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी। दिस इज द फैक्ट, nobody can challenge it. This is the fact. Ecology is the permanent economy that we are talking, the whole world talking on it in the different forms. Either we are talking about the SDGs here today. पिक्चर्स यू कैन सी, ये ओरिजिनल वही 30 लोग हैं जो कुछ साल बाद एक साथ फिर मिले थे, तो फ़ोटो खिंचवाया था, तो ये पिक्चर एक मिल गया था मैंने आपको। हाँ, तो चिपको मूवमेंट आप याद रखेंगे कब हुआ था, 1973 में। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। हाँ, उस समय
कौन उसको आगे बढ़ाया, उसको फॉर्मल वे दिया, सत्याग्रह के रूप में आगे लेके गए, ही वॉज सुंदरलाल बहुगुणा जी. हाँ, एंड ही गेव अ स्लोगन, इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी. ओके, नाउ another andolan, another movement started in Karnataka 1983. Many more, but two are the very famous movement which you should know for your exam point of view. तो दो तो बहुत महत्वपूर्ण है. अप्पिको कन्नड़ लैंग्वेज में इसका मतलब होता है हक करना, किसी चीज को गले लगाना. तो अप्पिको मूवमेंट वॉज स्टार्टेड. ओके, वहाँ पे शुरू हुआ. और वो कौन थे जो इन्होंने, जिसके नेतृत्व में ये शुरू हुआ था, उनका नाम भी याद रहना चाहिए आपको. ही वॉज ही वॉज पांडुरंग हेगड़े. पांडुरंग हेगड़े, यू कैन रीड इट, पांडुरंग हेगड़े. तो वहाँ भी ये मूवमेंट चलाया गया. ऐसे ही पूरी दुनिया में ये बड़ा फेमस हुआ मूवमेंट. ठीक है, तो थोड़ी सी जानकारी मैंने सोचा आपको रहेगी, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है 1 नंबर में. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच यू हैव टू स्टडी हियर, दैट इज़ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. भैया प्रॉब्लम है, पर्यावरण भी है और डेवलपमेंट भी है. आपके इस पेपर में जो इस चैप्टर में पढ़ना है, दैट इज़ द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट. बोथ आर ironical things, you can say. विरोधाभासी बातें हैं. when you are going for the protection of environment, you can't develop yourself in full fledged. This is the problem. But one concept came in very definition form in 1987. 1987 में एक कॉन्सेप्ट आता है, UNDP. एक कॉन्सेप्ट आता है आपका, और उस कॉन्सेप्ट को दिया UNDP ने. ओके, इसको समझिए पहले आप. दैट वाज द एस. पेन इज नॉट वर्किंग. व्हाई इट इज नॉट वर्किंग? मे बी सम रीजन. अब ट्राई टू अंडरस्टूड विदाउट पेन. मैं चाह रहा था पेन से थोड़ा सा आपको समझा देता, कोई बात नहीं, आप ऐसे भी समझ जाएंगे. एक व्यक्ति हुए थे, ग्रो हार्लेम ब्रनेट लैंड. इनके हेडशिप में एक कमेटी गठित की जाती है UNDP के द्वारा कि भाई आप एक फॉर्मल तरीका में सजेस्ट करिए, बात करिए, डेवलपमेंट की बात करिए जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे. तब वो डिफाइन करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को. और एक उनका पेपर पब्लिश होता है 300 पेजेस का, 300 पेजेस का. दैट इज नोन एज और कॉमन फ्यूचर. हमारा साझा भविष्य. पूरी दुनिया के लिए करते हैं. UNDP UNEP आपको पता है, पूरी दुनिया के लिए काम करते हैं, UN के ऑर्गेनाइजेशन से. तो वो कहते हैं कि आप पर्यावरण की बात करते हैं, आप डेवलपमेंट की भी बात करिए, आप अपने आप को डेवलप भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना मत डेवलप कर दीजिए, इतना मत रिसोर्सेस को यूटिलाइज कर लीजिए या एक्सप्लॉयट कर लीजिए जो नेचुरल और फिजिकल रिसोर्सेज हैं, कि जो आपके आने वाली पीढ़ी है उसके लिए रिसोर्स बचे ही नहीं अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए. वो कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट. प्रेजेंट मीन्स प्रेजेंट जनरेशन. प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ future generations to meet their own needs. Okay, and he addresses, बड़ा व्यापक इनका एक रिपोर्ट है, लेकिन आपको 3 बातें बहुत ध्यान से समझनी है इनकी रिपोर्ट में. ये 3 बातें क्या हैं? वो कहते हैं, वो उन्होंने कैटेगराइज किया कि 3 चीज़ें हैं, इसमें इसको मेंटेन करके चलना होगा. देन ओनली वी कैन अचीव this sustainable development in actual form, in real form. He talked about the intergenerational gap regarding
environmental degradation and sustainable development. And he gave the formula that in three parts you should try to understood. Number one, what is to be developed? What is to be developed? And another thing is, what is to be sustained? What is to be developed and what is to be sustained? Just categorize the things in two parts. And number three, he gave the concept for how long this relationship, what is to be sustained, just categorize the items and things and activities, and what is to be developed, categorized it, and for how long. He said that it should be for forever. उन्होंने कहा ये हमेशा मेंटेन रखो. What is to be developed? Society, production, consumption, economy, whatever things, developmental things, what is to be developed? Okay, and what is to be sustained? He said that all natural things, all ecological things, environment things, trees, river, etc. These things should be sustained. And these are the things you should develop. But in the maintenance of, with the maintenance of equation for forever, इन दोनों में सामंजस्य बना के रखना है हमेशा के लिए. ओके, दैट वाज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट आएगा कैसे? आपके बुक में दिया गया है, एनसीईआरटी में दिया गया है, सीबीएसई के सिलेबस में है. व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट? व्हाट मे बी द स्ट्रैटेजीज? कौन सी स्ट्रैटेजी आप ऑप्ट कर सकते हैं, या आप और भी ये 3-4 हमने जो कैटेगराइज किया, इसके अलावा भी और बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आप खुद दे सकते हैं. इट इज़ ओपन फॉर ऑल. यू कैन सजेस्ट द स्ट्रैटेजीज, गिव द स्ट्रैटेजीज, सजेस्ट द आइडियाज. ओके, नंबर 1, यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. नो डाउट अबाउट इट, इट्स ए स्ट्रैटेजी एंड वी आर डूइंग, the whole world are doing on it. एलपीजी, गोबर गैस इन रूरल, रसोई गैस. गांव में देखिए चूल्हे पे, लकड़ी पे खाना बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है, तो इन्वायरमेंट को वो एडवर्सली अफेक्ट करता है. तो कुछ इस तरीके से एलपीजी सब घर में भी गवर्नमेंट का स्कीम भी चला है. बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जानते हैं, घर घर गैस सिलेंडर पहुंचाने का, उज्ज्वला योजना. गोबर गैस लगते हैं गांव में, गोबर काउटंग वगैरह यूज किया जाता है उसमें, फिर उससे घर का खाना बनाया जाता है एनर्जी जनरेट करके. सीएनजी यूज करेंगे, धुआं कम निकलेगा, पोल्यूशन कम होगा. विंड पावर, बड़े बड़े टरबाइन जहाँ पे हवाएं तेज चलती हैं सामुद्रिक किनारों पे, वहाँ पे लगाइए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का प्रयास करिए. सोलर पावर थ्रू फोटोवोल्टिक सेल्स. आप देखिए सोलर पैनल्स जगह जगह लगाए जा रहे हैं, सोलर पार्क्स बनाए जा रहे हैं, और बड़े बड़े लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम चल. तो ये सारे कुछ अल्टरनेटिव्स हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज हैं on which government should try to work more. So you can see it, and these three terms are very important because it is mentioned in these are mentioned in your NCERT book. Number 1 is carrying capacity. किसी भी चीज़ की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, वैसे भी पर्यावरण की, वैसे ही पर्यावरण की भी कैरिंग कैपेसिटी होती है. वहनीय क्षमता. भाई आप साइकिल पे जा रहे हैं तो साइकिल पे 1 लोग बैठ गए, 2 लोग बैठ गए, 3 लोग ज़्यादा बैठेंगे तो टूट जाएगी ना. लाइक वाइज हियर फॉर द इन्वायरमेंट यू शुड टेक केयर ऑफ कैरिंग कैपेसिटी. कैरिंग कैपेसिटी यानी एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, कितना एब्जॉर्ब कर पाएगा हमारा पर्यावरण, ये देखना है. वी हैव रीच्ड टू आवर थ्रेशोल्ड लिमिट. वंस वी रीच्ड आवर थ्रेशोल्ड लिमिट, द क्राइसिस विल कम, द इन्वायरमेंटल क्राइसिस विल कम. असमय बारिश होगी, असमय तूफान आएगा, असमय ठंड होगी, असमय गर्मी, कुल मिला के चीज़ें आपके नियंत्रण से बाहर चली जाएंगी. सो दीज 3 टर्म्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो this is the important concept, students try to understood. ग्लोबल वार्मिंग, ये बड़ा आता है एग्ज़ाम में, बहुत कॉमन सेंस की चीज़ है, बहुत बार आप सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे. थोड़ा सा अभी और ध्यान देना है. जिक्र है एनसीईआरटी में आपके ग्लोबल वार्मिंग का, ओजोन लेयर डिप्लेशन का. विल टॉक अबाउट
these two terms, global warming and ozone layer depletion. Now, what is global warming? It's simply the gradual increase in the average temperature of the earth. Gradual increase, धीरे 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 करके पूरी पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है. दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. अभी ग्लोबल वार्मिंग, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग, यू मस्ट टॉक अबाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट. नाउ व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? अब आप थोड़ा सा समझिए, पेन अगर चले तो हम आपको समझा दें, अदरवाइज आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा. हाँ, पेन इज वर्किंग आई थिंक. सो ट्राई टू अंडरस्टूड दिस थिंग. दिस इज द सन. ये सन है, यहाँ से लाइट आती है, नो डाउट अबाउट इट. लाइट आ रही है कहाँ पे? अर्थ पे आ रही है. ये आपका अर्थ सरफेस है एंड वी आर लिविंग ऑन ट्रोपोस्फियर. ओके, इसके बाद स्ट्रेटोस्फियर आता है. ट्रोपोस्फियर जो धरती के जस्ट ऊपर वाला पार्ट होता है, 0 से 10 किलोमीटर की बात करते हैं, तो हम ये इस एरिया में रहते हैं. इस एरिया में होता क्या है, ये लाइट्स जो सनलाइट्स आती हैं, आती तो हैं और बहुत सारी रिफ्लेक्ट होके चली जाती है. कोई बात, अगर सब लाइट्स आए और सब रिफ्लेक्ट होके चली जाएं, दैट विल बी द प्रॉब्लम. तब तो यहाँ कोई जीवन ही नहीं होगा, ठंडा प्रदेश हो जाएगा, कोई जिंदा ही नहीं रहेगा, बर्फ जमी रहेगी. लेकिन ऐसा नहीं होता है. हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी गैसेज हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, बहुत सारी गैसेज हैं. अब वो क्या करते हैं, इसको जाने से रोकते हैं. सनलाइट आई तो, लेकिन पूरा का पूरा आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं तो आप जानते होंगे, वहाँ पे बजट बनाते हैं आप. उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे. जैसे हम इनकम और एक्सपेंडिचर का बजट इकोनॉमी में बनाते हैं, वैसे वहाँ भी सनलाइट का, या जो चीज़ें ऊपर से आ रही हैं अर्थ पे और जो जा रही हैं, उसका एक बजट बनता है. तो आप देखिए, ये सनलाइट आ तो रही है लेकिन पूरा का पूरा नहीं जा पा रही है. बड़ी अच्छी बात है, पूरा नहीं जा पा रही है, कोई दिक्कत नहीं. पूरा चली जाती तो समस्या होती, लेकिन एक ज़रूरत से ज़्यादा अगर ये सनलाइट रह जाए तो भी दिक्कत है. तो आप देखिए, ये जो ग्रीन हाउस होता है, ग्रीन हाउस क्यों बोलते हैं? बिकॉज वी हैव ग्रीनरी ऑन अर्थ ड्यू टू दैट गैसेज. ये जो गैसेज हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, CFC है, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब जो 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 चीज़ें हैं यहाँ पे, जो क्रियाकलाप हो रहे हैं, उसके कारण ये जो पूरा पूरा अर्थ है वो थोड़ा गर्म बना हुआ है, गर्म ब्लैंकेट की तरह बना हुआ है. जैसे ठंड में ठंड पड़ती है बहुत, तो आप ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं, ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं तो आपको राहत मिल जाती है. क्यों मिल जाती? क्योंकि हीट आप थोड़ा सा कंट्रोल करके अपने आसपास रख लेते हैं. ठीक है. अब अगर आप ज़्यादा ब्लैंकेट की जगह 10 ब्लैंकेट ओढ़ लेंगे तो समस्या हो जाएगी, गर्मी बढ़ गई. लेकिन अगर ब्लैंकेट कम है या चादर ओढ़ के काम चला रहे हैं बड़ी कड़ाके की ठंड में, तो भी समस्या है. तो यू शुड मेंटेन द बैलेंस. अब ये देखिए, आना अच्छी बात है, रेज आ रही हैं, रुक रही हैं, ये भी अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर रुकेंगी, ये यहाँ पे जो किरणें हैं सूर्य की, वो ज़रूरत से ज़्यादा अगर रुकेंगी तो होगा क्या? टेम्परेचर, जो एवरेज टेम्परेचर जो वहनीय है, जो हमारे क्रियाकलाप के लिए, हमारी एक्टिविटीज़ के लिए, हमारे प्रोडक्शन के लिए, विच रिक्वायर्स विच आइडल सिचुएशन में डिस्टर्ब, वो डिस्टर्ब होगा. फिर क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करेगा. वंस इट विल इंक्रीज, इट हैम्पर्स द आइस. जो बर्फ जमी हुई है कहाँ पे? अंटार्कटिका पे, या बहुत सारी एरियाज़ में जो बर्फ जमी हुई है, जो जो थोड़ा सा टेम्परेचर में कंट्रोल, जो बैलेंस बना हुआ है, उसके कारण जो बर्फ वो मेल्ट होगी, और मेल्ट होके आपके पानी वाले एरिया, सामुद्रिक एरिया में आएगी. तो समुद्र का लेवल बढ़ेगा, तो बहुत सारे एरियाज, कोस्टल एरियाज है, बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े देश जो समुद्र के किनारे हैं, उनके डूबने की संभावना कई सौ साल में लगाई जा रही है. कुछ उसका टाइम पीरियड है. बड़े काम हुए हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इस पे हम. बहुत सारे प्रेडिक्शंस हैं, बहुत सारे कमेटीज़ हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, और बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं इस पे. तो उसकी चर्चा नहीं करेंगे. बस समझिए ग्लोबल वार्मिंग है क्या? ये सनलाइट आती है, पूरी पूरी जाती नहीं है, तो इसको ग्रीन हाउस गैसेज, ये 6 गैसेज जो हैं,
जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, CFC है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस मिलके उसको गर्म करे रहती हैं। लेकिन अगर इनकी संख्या ज़्यादा हो गई, इनका एमिशन ज़्यादा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा एमिशन हो रहा है, मीथेन का ज़्यादा, तब क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी बढ़ने लगती है और वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो उथल पुथल क्रिएट करती है आपके सिस्टम में। ओके, now factors responsible for global warming, already I have told you the greenhouse gases, this greenhouse gas effect, it is written here, you can see। तो बड़े आसानी, ये नहीं है कि ये गैसेस पूरी की पूरी खराब है, थोड़ा सा आपको ब्लैंकेट, गर्म ब्लैंकेट देती हैं ये, हाँ, तो आप समझिए इसकी इंपॉर्टेंस को, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, दिस इज अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग इन शॉर्ट। मेरे ख्याल से काम भर का चीज़ आप समझ गए हैं। आप एग्जाम में ऐसे बना के भी समझा सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट वन लाइन डेफिनेशन व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, यू कैन मेंशन द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। नाउ अनदर थिंग विच इज रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट, दैट इज द ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओजोन लेयर डिप्लेशन, अब ये ओजोन की जो लेयर है, ऑक्सीजन के 3 पार्टिकल्स मिलकर ओजोन बनाते हैं। हाँ, केमिस्ट्री में आप या छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे। अभी देखिए, आपको बता रहा था ना कि ट्रोपोस्फियर 0 से 10 किलोमीटर, सबसे नीचे देखिए ट्रोपोस्फियर जो है 0 से 10 किलोमीटर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर है। तो ये दोनों जगह ओजोन लेयर पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फियर में भी और ट्रोपोस्फियर में। आइए इधर, जो स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर है दैट इज गुड फॉर अस, एंड जो हमारे आपके बीच पाई जाती है दैट इज हार्मफुल फॉर अस। तो हमें क्या करना है, ये जो ओजोन लेयर का डिप्लेशन, बार बार आप सोचते हैं ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है जो अल्ट्रावायलेट रेज सन से आती हैं, जो खतरनाक किरणें हैं, जो कैंसरस भी हो सकती हैं, या आपके फसलों को, आपके मकानों को, आपको, आपके क्रिएशंस को, आपको खुद को हार्मफुल हो सकती हैं, हार्म पहुंचा सकती हैं, उनको वो रोक लेती हैं। ये जो ओजोन लेयर बनी हुई है स्ट्रेटोस्फियर में, सबसे ऊपर वाली परत दिखाई दे रही है आपको, वो क्या होती है, जो हार्मफुल रेज होती हैं उनको रोक लेती है, वहीं पे आप तक नहीं आने देती, आपको सेव करती है। लेकिन होता क्या है, जो ओजोन लेयर बनी हुई है उसको डिप्लेट करने का काम करती हैं कौन, ये जो खतरनाक गैसें हैं जो ट्रोपोस्फियर में हम जनरेट करते हैं, खास करके CFC, क्लोरोफ्लोरो, ये खास करके जो हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में यूज करते हैं, जो जो रेफ्रिजरेटर्स में यूज करते हैं, एयर कंडीशनर्स में यूज करते हैं, वो सीधे सीधे ओजोन लेयर को डिप्लीट करने का काम करती हैं। और ओजोन लेयर अगर डिप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, तो फिर उसका नुकसान क्या होगा, आप देखिए कुछ इस तरह से बना हुआ है, इस पर डिप्लेशन का साइन दिख रहा होगा। तो सनलाइट सीधे जो खतरनाक हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज विल कम ऑन अस एंड इट damage our creation, it may damage। okay, now government did something regarding environment, to regarding the water and air pollution. Government had set up the Central Pollution Control Board in 1974। this was followed by स्टेट, अब राज्य भी इसी के अनुसार अपना वो बोर्ड्स, बहुत सारे स्कीम्स, प्रोग्राम्स और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रहे हैं, बहुत सारे हैं। अभी तो ये शुरुआत हुई थी 1974 में, जिसका जिक्र आपके NCERT में है, तो मैं भी आपको यहाँ पे बता दिया। नाउ व्हाट वी स्टडीड, environment performs 4 functions: supplies resources, assimilate waste, sustains life by providing genetic and biodiversity, and provides aesthetic services। just recap, population explosion, affluent consumption and production have placed a huge stress on the environment. That's why we are going for the sustainable development, and threat to Indians environment is of the dimensions: threat of poverty induced environmental degradation, and the threat of pollution from affluence and a rapidly growing industrial sector, no doubt about it। okay, and we are ultimately here running for the sustainable development. Sustainable development is the development that the need of the present generation without compromising the ability of the future generation to meet their own need
With this line, your NCRT concluded the chapter. Okay, because in this area, whole world is working, and very recent concept which many researches are ongoing. बहुत सारी चीजें हो रही हैं. That is the Sustainable Development Goals. UNEP given the Sustainable Development Goals in 2015, and the whole world will try to achieve it by 2030. All 17 sustainable goals. In that, the 17 sustainable goals and 169 targets under the goals, and 241 indicators mentioned in that SDG 2017. So we are here right now, going to achieve the sustainable development goals by 17 goal by achieving the 17 goals, by achieving the 169 targets, and by achieving the 241 indicators. The whole world uh, are working on it. Okay, this is all about the chapter number 9. Okay, that is the that is environment and development. That's all for today. Thank you.